हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं शुभम अपने इस यूट्यूब चैनल पब्लिक ओपिनियन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे देश के अंदर किसान आंदोलन बहुत ही जोर शोर से चल रहा है, जो कि आजकल हर एक न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, हर जगह पर एक चर्चे का विषय बना हुआ है। जिसका कारण है कि मोदी जी के द्वारा लाए गए 3 न्यू एग्रीकल्चर बिल, जिसके लिए किसानों को लगता है कि ये तीनों बिल किसानों के हित में नहीं पास गए हैं, ये तीनों बिल उनके फायदे के लिए नहीं हैं। लेकिन मोदी जी के द्वारा हर बार यही कहा जाता है कि ये तीनों बिल किसानों के हित में ही पास गए हैं। तो दोस्तों, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये तीनों बिल किसानों के हित में ही पास किए गए होते तो किसान इन तीनों बिलों का विरोध क्यों करते? क्यों किसान अपना सारा कामकाज छोड़कर सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर होते? क्यों औरतों से लेके बूढ़े बच्चे सभी सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर होते? ये तो नहीं है कि उनका इन चीज़ों से नुकसान नहीं हो रहा, उनकी भी तो फसलें खराब हो रही हैं, फिर भी वो क्यों लगातार रोड पे आकर बैठे हुए हैं? क्यों उनका दिन पर दिन उनके गुस्सा बिल को लेकर बढ़ता ही जा रहा है? तो एक ऐसी ही वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें बिल को लेकर और केंद्र सरकार के ऊपर किसानों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो वीडियो के बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि ये तीनों बिल है क्या, क्यों किसान इन तीनों बिलों को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्यों किसान इन तीनों बिलों का विरोध कर रहे हैं। हाँ जी सर, तो पहला तो ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਮਾਰ। ਤਾਂ ਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟੂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲੂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ। ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਇਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 3-4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਬਿਹਾਰ ਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਫਸਲ, 500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੰਗ ਦੇ, ਟਰੰਪ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਘੇਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਇੱਕਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਾਰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਛੜੂ ਹੈ ਮਲੰਗ। ਸਾਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਹੱਥ ਹੋਏ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਇੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਕੋ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੀਵੀਆਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀਆਂ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਭੁੱਖ ਲੰਘ ਆ ਜੀ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਉਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਟੌਪ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬੀਜੂਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਇਹਦਾ ਖਸਤਾ ਬੀਜ ਦੂਗੇ ਖਸਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਲੈਕ 'ਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। दोस्तों,
अभी आपने वीडियो में देखा कि कैसे किसानों का गुस्सा निकल रहा है केंद्र सरकार के लिए और बिल के लिए। अब हम बात करते हैं उन 3 बिल के बारे में जिन्हें किसान बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है, जिनका किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, खास करके पंजाब और हरियाणा के किसान जो कि इस बिल का लगातार पिछले 1-1.5 महीने से लगातार विरोध कर रहे हैं। तो अब हम जानते हैं इन 3 बिल के बारे में। पहला बिल है एसेंशियल कमोडिटी बिल 2020। तो दोस्तों इस बिल में क्या है मैं आपको बता दूं। इससे पहले क्या था, किसान और व्यापारी किसी भी फसल को ज़्यादा लंबे समय तक और ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, इस बिल के तहत किसान और व्यापारी दोनों ही किसी भी फसल को ज़्यादा लंबे समय तक और ज़्यादा क्वांटिटी में जितना चाहे उतना स्टोर कर सकते हैं। अब सरकार का कहना है कि अगर किसी भी किसान को उनकी फसल का उनको सही दाम ना मिले तो वो किसान अपनी फसल को स्टोर करके रख सकता है और जब उनको उनकी फसल का सही दाम मिले तब वो उसको बेच सकता है। तो दोस्तों अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि किसान अपनी फसल को स्टोर करेगा कहाँ पे। उनके पास तो कोई स्टोरेज सिस्टम है ही नहीं। और मान लो वो अपनी फसल को घर पे स्टोर कर भी ली तो 3-4 महीने बाद दूसरी फसल फिर आ जाएगी। अगर मान लो उसका भी रेट ना लगा फिर वो कैसे मैनेज करेगा उसको। अब दूसरी तरफ जो व्यापारी है, व्यापारियों को तो काम यही होता है कि सस्ती चीज़ को ले लेना और बाद में महंगी करके बेच देना। अब किसानों जो व्यापारी होते हैं उनके पास तो स्टोरेज सिस्टम पहले ही होता है, तो वो फसल को पहले सस्ती में खरीदते हैं, उसके बाद जब मार्केट में उस चीज़ की कमी हो जाती है तब उसको महंगे दाम में बेचते हैं वो। तो दोस्तों आप मुझे इस बिल के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि आपके क्या विचार हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरे बिल के बारे में। दूसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो दोस्तों इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है कि फसल का पहले ही मोल भाव कर लिया जाएगा। मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई तेल वाली कंपनी है, सरसों के तेल वाली कंपनी है, उनको सरसों के तेल के लिए क्या चाहिए, सरसों के बीज चाहिए। वो कहाँ से मिलेंगे, वो किसान उगाता है। और किसानों से जो व्यापारी होते हैं वो सस्ते दाम में लेते हैं, उसके बाद कंपनी जो होती है वो व्यापारियों से महंगे दाम में खरीदते हैं, क्योंकि वो व्यापारी हैं भी। व्यापार का मतलब क्या होता है कि वो कम रेट में लेके महंगे दाम में बेचेंगे। अब क्या करेगी, इस बिल के अनुसार क्या है कि कंपनियां डायरेक्ट किसान के पास आएंगी। वो किसान के पास आएंगी, वो पूछेंगी हाँ हमें बिल चाहिए, हमें बीज चाहिए, सरसों के बीज चाहिए। आप पिछले साल आपने क्या रेट दिया था, पहले क्या रेट बेचे थे। अब किसान बोलेगा कि हमने जी 50 रुपये के जी बेचे थे, 70 रुपये के जी बेचे थे। तो कंपनी बोलेगी ठीक है तो आप ऐसे कीजिए, हम आपसे 90 रुपये के जी खरीदेंगे, आप हमें सरसों के बीज उगा के दीजिए। तो किसान का इस तरीके से तो सोचा देखा जाए तो फ़ायदा ही है, किसान को तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है इस बिल में कि मान लो बाई चांस उस कंपनी को, जो सरसों के तेल वाली कंपनी है जो किसान के पास कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आई थी, उस कंपनी में नुकसान हो जाए, उस कंपनी को घाटा लग जाए, तो वो कंपनी किसान को बिना कुछ बताए, बिना कुछ दिए वहाँ से उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है। लेकिन किसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता। मान लो बीज उसने पहले 50 रुपये बेचे थे, अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो 90 रुपये के जी हुआ है। लेकिन मान लो बाई चांस मार्केट में तेजी आ जाए, वो बीज मार्केट में 100 रुपये के जी बिकने लग जाए, तो किसान को तो फिर नुकसान ही है वो, क्योंकि डील उनकी पहले कॉन्ट्रैक्ट में पहले 90 रुपये के जी हो चुकी है और मार्केट में 20 बिक रहा है, तो वो उसको 90 रुपये में ही कंपनी को देना पड़ेगा। इस तरीके से किसान को फिर यहाँ पे नुकसान है। और दूसरी तरफ अगर वो कंपनी छोड़ के चली तब भी किसान को नुकसान है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे बिल के बारे में। तीसरा बिल है ट्रेड एंड कॉमर्स। तो दोस्तों इसमें क्या है कि अगर कोई भी व्यापारी, कोई किसान, अगर उनको उनकी फसल का सही दाम वहाँ पे ना मिले तो वो अपनी फसल को कहीं और ले जाके बेच सकता है, दूसरी स्टेट में भी जाके बेच सकता है, उनसे कोई पूछताछ नहीं किया जाएगा। तो अब क्या है, अगर मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे बिहार है या यूपी है या कोई और बहुत सारी स्टेट है जिनके अंदर एमएसपी नहीं लागू की जाती। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा तय किया जाता है। तो अगर किसी स्टेट में एमएसपी नहीं है तो वहाँ के किसान क्या है कि वो व्यापारियों को बेच देते हैं सस्ते दाम में। और व्यापारी उनको तो अपना बेनिफिट चाहिए, अब वो देखते हैं उनको कहाँ सही दाम मिल सकता है, उनको कहाँ बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे बिहार, पंजाब और हरियाणा है, वहाँ पे एमएसपी लागू होती है, यहाँ एमएसपी गवर्नमेंट द्वारा लागू की जाती है। एमएसपी से कम जो दाम फिक्स किया था उससे कम कोई भी व्यापारी किसी भी किसान की फसल नहीं खरीद सकता।
तो अब मान लो जैसे कोई दूसरी स्टेट का व्यापारी है, अगर उसको वहाँ पे उसने जो चावल है, जो कनक है, उन्होंने वहाँ पे 1100 रुपये क्वांटल खरीदी है। अब वो क्या करेगा, यहाँ वहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा के वहाँ पे पंजाब और हरियाणा लेके चला जाएगा। अब पंजाब और हरियाणा में क्या है, जो कनक है और जो चावल है उसका जो रेट होता है, मिनिमम जो रेट होता है वो 1800 रुपये क्वांटल और 2000 रुपये क्वांटल, इतना प्राइस होता है। अब वहाँ के जो व्यापारी हैं वहाँ से उन्होंने सस्ता खरीदा और जाके पंजाब और हरियाणा के अंदर जाके बेच देगी। अब अगर मान लो आपको भी पता ही है, अगर कोई चीज़ की मार्केट में ज़्यादा आ जाए तो उसका रेट कम, ऑटोमेटिकली उसका रेट कम हो जाता है। अब वो व्यापारी अपनी फसल को यहाँ ले पंजाब और हरियाणा या कहीं और स्टेट में लेके जाएंगे जहाँ उनको MSP मिलती है। तो जो वहाँ के किसान हैं तो उनका ऑलरेडी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फसल का दाम कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी चीज़। तो यही कारण है कि जो मेन किसान है इस बिल को मानने के लिए तैयार नहीं है। यही मेन कारण है कि वो सरकार का इस बिल के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो का दूसरा पार्ट बनाएं ताकि उसमें हम डिटेल में समझ सकें कि बिल क्या है, इसमें क्या चेंजेस की ज़रूरत है, ताकि किसान इस बिल को अपना सके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने बारे में बता सकते हैं, तो ताकि हम दूसरी वीडियो बनाएं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।